جی ناظرین، اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب سے 12 گھنٹے بعد ایک اور عدالت لگنے لگی ہے جو سپریم کورٹ میں جو جواب جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. جیسے آج تو کہہ دیا اٹارنی جنرل نے کہ فیصلہ بہرحال کیبنٹ ہی کرے گی اور کیبنٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اسی پہ بات کریں گے. گفتگو کا آغاز ہوتا ہے, کچھ توہین عدالت کو بھی ڈسکس کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سیاسی مشیر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بھی. فوزیہ قصوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی سربراہ بھی ہیں. انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. فواد, سب سے پہلے تو یہ بتا دیں, پی ایم صاحب آج تو اٹارنی جنرل نے کہہ دیا جی فائنل فیصلہ کیبنٹ ہوگا. کیبنٹ کا فیصلہ اگر ہوگا تو اپنے اوتھ کے ساتھ روگردانی نہیں کر رہے اس میں؟ کیا مطلب اوتھ جو انہوں نے اٹھایا کہ میں اپنے کچھ پرسنل انٹرسٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا. پرسنل انٹرسٹ مین پارٹی کے ساتھ اگر آپ کی لائلٹی اگر آپ دکھا رہے ہیں وہ پرسنل انٹرسٹ میں آ گئی نا, تو اوتھ کے ساتھ اگر روگردانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پارٹی کے ساتھ کیا دستور کے ساتھ ہی تو نہیں, پرسنل انٹرسٹ نا. وہ کہتے ہیں بی بی کے قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا. چلے بالفرض بات یہ ہے کہ کوئی یہ بات یہ نہیں کر رہا. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی بھی یہی بات کر رہے تھے, پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف بھی یہی بات کر رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 248 ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. چنانچہ آئین کے ساتھ وفاداری ہی کے لیے انہوں نے اپنی سیٹ کی قربانی دی اور انہوں نے بھی وہی عدالت کا جو ججمنٹ ہے آپشن وہ جو ہم 12 جنوری پہ چلے جاتے ہیں, وہ جو عدالت نے اپنے ججمنٹ میں لکھا آپشن 6 آپشن آرٹیکل 248 کے خلاف ہے. آپشن نمبر 1 تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ اوتھ کو اپنے فالو نہیں کرتے تو اللہ کے نافرمان ہوئے. کون؟ تو اوتھ کو تو فالو کر رہے ہیں, جج اوتھ کو فالو نہیں کر رہے. یہ ججز نے لکھا, آپشن نمبر 1 میں لکھا. دیکھیں ججز کا خیال ہے وہ اوتھ کو فالو نہیں کر رہے, میرا خیال ہے وہ ججز اوتھ کو فالو نہیں کر رہے. اچھا, تو یہ تو میں نہ مانوں ہار والی بات ہوگی. میں نہ مانوں ہار والی بات نہیں ہے. دیکھیں آئین میں بڑا واضح مینڈیٹ ہے. آئین میں مثال کے طور کے اوپر یہ جو ابھی کل کی بھی جو ججمنٹ ہے, جو 17 رکنی بینچ ہے, اس نے کہا وفاقی حکومت عمل درآمد کرائے. وفاقی حکومت آئین میں ڈیفائنڈ ہے. وفاقی حکومت کا مطلب ہے وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم. اب 5 رکنی بینچ کہہ رہا ہے جو ہم نے 17 رکنی بینچ نے بھی دیا اس کو بھی چھوڑ دیں. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا وہ حتمی فیصلہ, وہی اسی وزیر اعظم کے لیے فیصلہ, اور اپنی ایڈوائس کسی کی ایڈوائس پہ میں آپ کو بتاؤں خود سے فیصلہ کریں, خود سے جواب داخلہ کریں. کوئی نہ لیگل بحث ہے نہ کچھ ہے. صرف مسئلہ سپریم کورٹ 2009 میں دیا تھا نا, 2012 آ گیا, کوئی قیامت تو نہیں آ گئی. 3 مہینے اور بھی صبر کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ چلیں سپریم کورٹ صبر کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ سن لیں. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں کچھ حضرات اور ہمارے جو کزنز ہیں وہ چاہتے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آصف زرداری الیکشن کے وقت وانے صدر نہ ہو. چلیں اچھا, مین ٹارگٹ آصف علی زرداری, آپ کو لگ رہے مین ٹارگٹ آصف علی زرداری؟ الیکشنز تو اب آ رہے ہیں, فیصلہ 2009 کا ہے. این آر او جو فیصلہ آیا تھا 2009, تو 2009 کا فیصلہ اور 2012 ہو گئی, تو ٹارگٹ ابھی بھی آصف علی زرداری ہے. دیکھیں آسمہ, پوری قوم دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط حکومت کی طرف سے ہے. انہوں نے کورٹس کو کبھی ان کے مانے نہیں, ان کی جو بھی انہوں کی رولنگز تھیں انہوں نے ان سے کبھی کمپلائنس نہیں دکھائی. آج جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی کا تو یہ چکر ہی نہیں ہے سارا. پہلے تو یہ سیدھا سمپل سا ایک آرڈر تھا. میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ نے بہت صبر اور تحمل اور بہت اچھی طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم دیا اس چیز کو. نہیں, اس کا ذکر نہیں کہ 3 مہینے اور دیے جائیں. اس وقت جو یہ آپ لوگوں نے کنٹیمپٹ ایکٹ بنائی ہے یہ صحیح نہیں ہے, نہ اس کی نیت صحیح ہے نہ اس کے ریزن صحیح ہیں. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آئین کے تحت جب انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا تو اس اوتھ میں صاف ہے کہ وہ اپنا لا کی سپریمیسی اور اس کے ساتھ چلیں گے اور اس کو بڑھائیں گے, نہ کہ کوئی اپنی انا یا پارٹی کا مسئلہ. یہ تو ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ سیلف انٹرسٹ کے لیے کام ہو رہا ہے, سیلف انٹرسٹ کے لیے. دستگیر صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی, عدالت کا جو فیصلہ تھا, ہم جو چلیں جنوری کا جو فیصلہ آیا یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے 6 آپشنز دے دیے گئے. آپشن نمبر 1 کہ اپنے حلف سے روگردانی کی تو بادی نظر میں امانت دار نہیں رہے. تو اس میں جب ججمنٹ کو آپشن نمبر 1 آپ غور سے پڑھیں تو اس میں جج لکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو وہ پھر اللہ کے بھی نافرمان ہوئے. تو اب یہ جو دوسرے وزیر اعظم ہیں ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے, توہین تو چلیں اس پہ نہیں لگتی, کیا اس کے ذریعے 62(1)(f) کے ذریعے یہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں آپ کو جملہ پڑھ کے سنا دوں کہ پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا کیا ہوا ہے. حلف میں لکھا ہوا ہے that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions.
Exactly यही कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये एक जुमला है। और अब मामला ये है कि कोर्ट ने जब 6 ऑप्शन दिए थे, वो कोर्ट की तरफ से एक बहुत ज्यादा जुडिशियल रिस्ट्रेंट था एग्जेक्टिव के लिए कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपना अमल दुरुस्त कर लें, और तो कानून की इंतहाई सादा अमल जारी है उसके ऊपर अमल करके तो मामला कोई इस हद तक नहीं आना था। अब लेकिन इशू यही है, हम की तमाम आसमा जब बहस कर रहे होते हैं कि जी कंटेम्प्ट हो गया, वजीर आजम निकल गया, इसकी जड़ में वो 6 करोड़ डॉलर हैं जो स्विस बैंक में मौजूद थे किसी जमाने में, अब तो शायद निकाल लिए गए हैं, लेकिन उस लूट के 6 करोड़ डॉलर को बचाते बचाते आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये जो अदलिया और इंतजामिया की लड़ाई थी, इसमें पार्लियामेंट को भी इन्होंने घसीट लिया है, और इन दी एंड पीछे वही बात है कि 6 करोड़ डॉलर बचाने हैं, 18 करोड़ पाकिस्तानियों का वजीर आजम एक बली चढ़ गया और अब दूसरा भी बली चढ़ने जा रहा है। ये जरदारी हटाओ कैंपेन है। मैं इस पे बात करूंगी। अतर मिनल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर कानून दान है, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। अतर मिनल्ला साहब, हम ऑप्शन नंबर 1 पे आ गए। 6 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन 1 अपने हलफ से रूह गर्दानी, तौहीन अदालत तो चलें एक तरफ कर दें, इन्होंने कानून बना दिया, तौहीन नहीं इन पे लग सकती। अब अपने हलफ से रूह गर्दानी करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या ये वाकई जरदारी हटाओ मुहिम है जैसे फवाद ने पहले कहा? नहीं, देखिए जी, 2 चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जो वो 6 ऑप्शन थे वो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए थे, और उसके बाद जो है उन 6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उन्होंने उस पे अमल किया, और बाकी ऑप्शन मेरे नजर में इस वक्त जो है वो बेमकसद हो गए हैं, क्योंकि उनमें से एक ऑप्शन पे उन्होंने ऑलरेडी अमल कर चुके हैं। दूसरा, आप जो कह रही हैं बार बार हल्फ के बारे में सारे बात कर रहे हैं, ये तो जब से कायदे आज़म से लेके आज तक हल्फ की किसी ने परवाह की है? अगर परवाह की होती तो आज पाकिस्तान इस हालत में नहीं होता जिस हालत में। और लोगों ने जो है हल्फें उठाई हैं और इस मुल्क को तोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कम से कम जो एक वाकया हो चुका है, वो बड़ा अफसोसनाक वाकया था, वो दोबारा ना हो, और जो अदालत के फैसले हैं उन पे अमल किया जाए। बेशक वो अदालत के फैसले किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन चूंकि अदालत वजूद में आइन के जरिए आती है और उनके फैसले उन पे अमल करना भी आइन का तकाजा होता है, तो मेरे ख्याल में तो जो फैसले हैं उन पे मनोअन अमल करके अमल होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे ये बताते चलें, आर्टिकल 90 का वो हवाला देते हैं वजीर कानून साहब और कहते हैं कि वजीर आजम पाबंद हैं, वो जो उनकी कैबिनेट है, इतनी बड़ी जो कैबिनेट है, अब कैबिनेट जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे और वही वो जवाब होगा। अब तो बीच में कैबिनेट आ गई सारी की सारी। नहीं, देखें जी, सच्ची बात जो है वो ये है कि ये तो वैसे ही उसके जवाब पैदा करने हैं, उसको डिले करने के, वरना अदालत का एक फैसला है, वो अदालत बार बार कह चुकी है, या तो अदालत को जाके सामने कह दें कि ना हमने कभी इस पे अमल करना है और ना इस पे अमल किया जाएगा, ठीक, तो ये मामला खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, जी खुरम साहब, जी सवाल ये है कि जब यूसुफ गिलानी साहब अदनान ख्वाजा को OGDCL का चेयरमैन लगा रहे थे, उस वक्त उन्होंने काबीना से राय नहीं ली थी। ठीक, वो जब अयाज न्याजी को NICL का चेयरमैन लगा रहे थे, उन्होंने उस वक्त राय नहीं ली थी। वो हज स्कैंडल जो सामने आया था, हज लगा रहे थे तो काबीना से राय नहीं ली। ठीक, तो ये मामला है। और जिस तरह जब इनको बहुत सारे फैसले एग्जेक्टिव ने किए हैं, एग्जेक्टिव के तमाम फैसले काबीना में नहीं जाते। काबीना में अतर मिनल्ला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये रूल ऑफ लॉ से बचने की कोशिश है, और इस बचने की कोशिश में वो 6 करोड़ डॉलर बचाते सही कुछ और ही ना हो जाए ना, और अदलिया का और पार्लियामेंट का एक्सक्यूज हो रहा है। फवाद साहब, अगर पार्लियामेंट की बात तो चले हम एक तरफ रख दें, जो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 90 के जरिए अब कैबिनेट फैसला करेगी, उसमें रूल 2 जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद से भी फैसला कर सकते हैं, एग्जेक्टिव है ना, खुद से भी फैसला कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि चर्च किया कि काबीना के ऊपर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो 17 रुकनी बेंच है उसने कहा था, और जिस दिन ये हुआ था तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने भी आपको अर्ज किया था कि 5 रुकनी बेंच ने 17 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा था वफाकी हुकूमत अमल दरामद कराए। वफाकी हुकूमत की तारीफ
आइन में दे दी गई हुई है, काबीना और वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत बनाते हैं। अब फैसला ये करना है कि क्या 5 रुकनी बेंच 17 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील कर सकता है? तो अदालत का फैसला तो अदालत का फैसला बाहर है। 17 रुकनी बेंच का फैसला है ना, नहीं ये फर्क है ना। 17 रुकनी बेंच के फैसले को तब्दील करने के लिए 17 रुकनी बेंच ही चाहिए, वो तब्दील नहीं कर सकता, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब बार बार कह रहे हैं $6 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ डॉलर, 350 अरब डॉलर के एलिगेशंस हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। वो तो कोई नहीं ये कह रहे कि आप अपने मियां साहब को तो नहीं कह रहे वापस ले आओ भाई। इसी तरह से जो जरदारी साहब के ऊपर एलिगेशन है, 11 साल इन्होंने उनको जेल में रखा, इन्होंने उनकी जुबान काटी, इन्होंने हर मुमकिन तशद्दुद उनके ऊपर किया। बेनजीर भुट्टो जो है उनको इन्होंने जेल में रखा, नुसरत भुट्टो मरहुमा को इन्होंने जेल में रखा। नहीं, कोई चीज साबित नहीं हुई ना 20 सालों में, 1 रुपया साबित नहीं हुआ। एक मिनट मेरी बात सुनने, 1 रुपया साबित नहीं हुआ। अब इलेक्शंस को जब 3 महीने रह गए हैं, उस वक्त इनको क्यों याद आता है इलेक्शंस की बार-बार इलेक्शंस का जिक्र कर रहे हैं और जरदारी हटाओ मुहिम का वो जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आसफ जरदारी साहब जरदारी साहब सदर से बाहर निकालें और ये बस ये अपनी मौज करें। जिसके भी पैसे हैं वो ये पैसे पाकिस्तान की अवाम के हैं, इनको वापस आना चाहिए। ये तो मानते ही नहीं कि हमने करप्शन किया। ये जो उनको ऊपर कह रहे हैं ये दूसरे पे डालते हैं। नहीं, इनके मानने से क्या होता है अगर नहीं मानते, जेल में रख के नहीं निकले, नहीं कोई एविडेंस नहीं ला सके। अब 200-300 हेल्थ सर्टिफिकेट आपने दिए, खराब हो गया, कभी कमर खराब होगी, कभी क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने खिलाफ केस पूरा करूं। ये एक नई अदलिया है, ये नए टाइम्स है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल अवाम की है। हाँ हमारी है, क्यों नहीं है, हम अदलिया के साथ बिल्कुल खड़े। आप हैं कौन? पीटीआई अमल दरामद कराएगी अदलिया के फैसलों पे, ये नए मामले बन गए। सपोर्ट कर रहे हैं ना अदलिया को। हम जो भी कुछ है फवाद साहब वो कौम जानती है, हमें आपसे एंडोर्समेंट नहीं चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये अदलिया नहीं, आप उनको क्या कह रहे हैं वजीरिस्तान ना जाए? अपने लीडर के साथ जाएंगे, जज्बाती हो गए। नहीं, जज्बाती की बात नहीं है जी, हक की बात है, हम लोग हक के ऊपर चलते हैं। आसमा मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर है। ये एनआरओ एक बहुत ही गलत कानून था, ये गलत ऑर्डिनेंस था एक डिक्टेटर का, इसको रिवर्स होना ही होना था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत टाइम दिया। अब ये जो इनके टैक्टिक्स हैं ये हकीकत में यही है कि किसी तरीके से वक्त को टालो, चाहे वो 3 महीने रह गए हो चाहे 2 महीने। इंसाफ का तकाजा ये कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल अदलिया इंसाफ कर रही है और हम उसके साथ खड़े। मैं यहाँ ऐड कर दूं। जी खुर्रम साहब, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के पास तो ये लेकर आए ना। 16 दिसंबर 2009 को एनआरओ के खिलाफ आया था फैसला, उसके बाद से अब 925 दिन हो गए हैं, इन्होंने घसीटा है इसको इलेक्शन के करीब। अगर ये उसी वक्त अमल दरामद कर देते और इंतजार नहीं हो सकता कि इलेक्शन हो जाए। 16 दिन कंटेम्प्ट में इन्होंने 248 आइन का कहता है सदर के खिलाफ नहीं। सुन लेना, आप उनकी बात सुन लें। हाँ, अब मामला यही है कि इनको ये जहाँ ये कहते हैं कि $60 मिलियन, वो तो हमारे पास बड़ी वाज़े शवाहिद मौजूद हैं कि $60 मिलियन जरदारी साहब के एसेट्स के 28 अगस्त को रिलीज के 350 मिलियन लेके आए। कुछ ना होता मेरे भाई तो आप ये यानी जो मॉडर्न करप्शन के बनी है पाकिस्तान में, जो मॉडर्न करप्शन का जन्म दिया, ये अगर पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूरे डिब्बे जो एविडेंस के थे वो उठाकर अपने कब्जे में कर। चलिए मुझे इसमें खुर्रम साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है आधा सेकंड का। भाई बात ये है कि कोई बात वो करे जिसका कोई अपना किरदार ऐसा हो। यानी पाकिस्तान में मॉडर्न करप्शन की नानी अम्मा है ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, और वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब हम पे तो 11 पाकिस्तान के आइन और $350 अरब रख के बाहर बैठे हुए हैं और हमें कह रहे हैं। चलिए सबकी करप्शन का जिक्र आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है। करप्शन तो बड़ी कहानी है, वो हमें बड़े प्रोग्राम्स। आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दाखिल कराया उस पे अदालत ने उनको कहा कि 8 मार्च 2012 को भी यूसुफ रजा गिलानी ने यही जवाब दाखिल कराया था, वो किसी की एडवाइस पर अमल दरामद ना करें, अपना जवाब दाखिल करें। ये राजा परवेज अशरफ के मुतल्लिक आ गया। इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।